Yeah. All right. All right. Okay, just give me a minute. I'm looking for a trade. Just give me a minute. Then we'll start our today's session. We'll discuss the basics. First of all, can I know one thing? How many of you are active in market since, like, let us say, at least 1 year? किस किस को एक साल से ज़्यादा हो गया मार्केट में? Just let me know. Okay. All right. All right. All right. Looks good. So first of all, what is stock? What is stock market? Let us discuss that. Let's start from absolute scratch. Okay, so let us start from absolute basics. First of all, what is stock? Stock is basically stock क्या होता है? Stock or share. It's one of the same thing, right? Stock is basically a part of a company available on market. We bought and sold. For example, there's a company known as ABC Limited, right? What they want is that they want to raise some funds, right? They have two options. Either they can go through some angel broker, angel investors or whatever they call it, right? Or they can go to public, right? And if the fundraising, the amount they want to raise is pretty much high, they can prefer public. Why? Because they can go through a lot of people and they can issue their shares, right? If people invest, if you, let us say the number of people, let us say 100 people accumulated, and if they invest in something, that will give you more funds than that of a single person can, right? एक सिंगल बंदा जितने आपके लिए फंड्स रेज कर सकता है, उससे ज़्यादा तो 100 लोग ही करेंगे, right? They can, if they can and if they want, right? So they have two options. Either they can go through some angel investors or they can go to public. या तो पब्लिक के पास जाएंगे या फिर इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे. Now in this case, राइट, लोग क्या करते हैं, कंपनीज क्या करते हैं, व्हाट दे वांट इज दे इनिशियली ऑफर सम स्टॉक्स टू पीपल, राइट? जिसको हम लोग आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, लेट अस से एबीसी लिमिटेड है, उसको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, बीन इन मार्केट सिंस लास्ट 5 years. एबीसी लिमिटेड हैज बीन इन मार्केट सिंस लास्ट 5 years एंड दे आर प्रोड्यूसिंग बैग्स, राइट? अब किसी बड़ी कंपनी, अब a big brand came in and they want this particular guys to allow pups. Okay, sorry, stop calling, guys. Just stop calling. Okay, so in this case, what they want is they want to issue, let us say, they have a
they have been running their industry or factory since last 5 years. They are producing and manufacturing bags. Now they have got an order from a big brand, a big giant brand that they want, let us say, 10,000 leather bags. Right now, in this case, their capability is not much to produce or manufacture 10,000 bags in, let us say, the time period fixed. Right. So what they will do is they want to expand now. राइट, अब उनको उनका बिजनेस जो है एक्सपांड करना है, दे वांट टू हायर न्यू मशीन्स, सारी चीज़ें लानी है उनको एक क्योंकि मैन्युफैक्चर करने हैं 10,000 बैग्स इन नो टाइम, लेट अस से 6 months itself. Right, so in this case they'll have to, let us say, increase their manufacturing speed. Right, तो machineries लगेंगी, लोग लगेंगे, and for that they need funds. Now they have two options: either they will go to some investor or they will go to public. Right, and in this case what they'll do is they'll go to SEBI. They'll ask they'll ask SEBI कि हम लोगों को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग देना है, वी वांट टू शेयर आवर पार्ट्स. Sorry for the disturbance, there's some issue with my voice. Right, so ABC Limited has to produce, let us say, 10,000 bags out there. Right now, in this case, what they'll do is they have two options. They'll either go to some angel broker, angel investor, or they'll go to public. Right now, what they did is, let us say they have an order for producing 10K bags. Now they all, after calculating everything, they need funds of, let us say, 10 lakhs. We're just taking an example. They need more funds of 10 lakhs. Right now, in this case, what they'll do is they have two options: either they'll go to this guy or this guy. Right, so to go to this particular public, they'll have to offer some initial public offering through stock market. Right, so in this case what they'll do is they'll go to SEBI, Securities Exchange Board of India. Right, उनका जो भी एक ऑफर लेटर है या जो भी है, they'll offer it. Right, they'll apply for IPO. once SEBI जो है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड जो रेगुलेट करती है हमारे स्टॉक मार्केट को, राइट, once SEBI approves their IPO, right, they'll launch their IPOs in market, right, through NSE and BSE. अब NSE and BSE क्या है? NSE and BSE are exchanges, India's biggest exchanges wherein companies register themselves, right, so that their shares can be bought and sold in stock market. Right, so even if any particular company out there wants their shares to be traded, right, legally, what they'll do is they'll have to register themselves in any particular exchange. Right, so in India we have major two exchanges. First one is Bombay Stock Exchange, another one is National Stock Exchange. Right, and there are people say that, and of course it is proven, there are 180 plus exchanges in India. The third biggest is Kolkata ones. Right, but now the two biggest exchanges in India are BSE and NSE. Right, so to go through people to raise funds, what they need to do is they need initial public offering, and they'll get themselves registered in NSE and BSE, and that's, they'll literally start allotting their shares. Right, so whatever funds they need, they'll divide it into the number of shares they can allot to people. Right, and then they'll start offering it to people. Now, अब लोग आके ये देखेंगे कि पिछले 5 साल में people will come in and they'll see that in last 5 years the company exists and what all things and what all percentage returns company has made. Right, and after looking into all that thing, people will start investing in that. Simple as that. People will start basically applying for the shares. Right, and once they launch it, they'll allot people the shares. For example, Zomato has been in market since very long. Right, Zomato is delivering food since 2016 or 14, I believe. They started from Bangalore and they are doing pretty good. Right, so उन्होंने क्या किया, उनका नाम पहले कुछ और था. शुरुआत उन्होंने कहाँ से की? They started with investors. Right, they got investors on board. ठीक है, अब उनके पास इन्वेस्टर्स आ गए, जो भी चीज़ें, सारी चीज़ें हुई, उसके बाद अब उनको और फंड्स की ज़रूरत है. राइट, दे वांट टू रेज देयर फंड्स मोर, उनको उनका बिजनेस एक्सपांड करना है. सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर कमिंग अप विद द आईपीओ लॉन्च. राइट, सेबी के थ्रू और सारी चीज़ें अप्रूव हो चुकी हैं. एनी टाइम सून दे लॉन्च देयर आईपीओ. राइट, अब हमको सिंपली हमारे ब्रोकर्स के थ्रू, ब्रोकर्स क्या होता है?
जिनके थ्रू, जहाँ पे हम लोग डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं और जिनके थ्रू वी कैन बाय एंड सेल आवर शेयर्स इन एनएससी एंड बीएससी या फिर जो भी एक्सचेंजेस है। मेजरली जो ब्रोकर्स हैं, बड़े बड़े ब्रोकर्स, दे आर इनटू एनएससी एंड बीएससी ओनली, राइट। सो वी कैन सिंपली बाय एंड सेल शेयर्स थ्रू अवर ब्रोकर्स। ब्रोकर्स के पास हमको हमारा एक डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट खुलवाना पड़ता है जिसको हम डीमैट अकाउंट बोलते हैं, राइट। एंड थ्रू देयर वी कैन जस्ट स्टार्ट बाइंग एंड सेलिंग, राइट। नाउ Zomato will start public offerings, right? So for example, they'll start with let us say they have, let us say, 10,000 stocks to be sold in market, right? What they'll do is they'll start taking applications from people, right? तो अब हमको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, हमको एनएससी बीएससी दोनों में से कहीं भी एक जगह जाके अप्लाई करना है जोमेटो के आईपीओ के लिए, राइट। एंड वंस वी अप्लाई, थोड़े टाइम बाद जब इनका आईपीओ लॉन्च होगा, दिल अलॉट शेयर्स। अब हर किसी को शेयर अलॉट नहीं होते, राइट। अगर ये 10,000 शेयर्स हैं अगर मार्केट में, तो लेट अस से दे विल ओनली अलॉट, लेट अस से आराम से नहीं करके भी 1-2 लाख लोग अप्लाई करेंगे, राइट। तो सबको तो शेयर्स मिलेंगे नहीं, या फिर 10,000 लॉट्स भी अवेलेबल हैं, राइट। 10,000 लॉट्स मतलब ग्रुप ऑफ शेयर्स, राइट। तो अगर 10,000 लॉट्स भी मार्केट में अवेलेबल है, देन एज वेल पीपल will not all of this guys will be getting the IPO, right? So that is how the process works, right? And once people buy it, the shares will start booming it, right? क्योंकि इसकी मार्केट में वैल्यू है। पिछले 5-6 साल से जितना इन्होंने काम किया है मार्केट में, ऑल व्हाट प्रॉफिट्स दे हैव शेयर्ड एंड ऑल व्हाट थिंग्स दे हैव शेयर्ड, राइट। सो उन सारी चीज़ों को देख के पीपल विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, राइट। इफ यू आस्क मी, अगर मेरे को आईपीओ अलॉट नहीं होता है, देन एज वेल व्हाट आई डू इज वंस दे लॉन्च देयर आईपीओ एंड वंस दे आर you know they start their stocks for trading or investing, or once they are launched, right, once the shares and everything is allotted, right, उस दिन से ही even on that particular day अगर स्टॉक सीधे 10 रुपए पे अलॉट हो रहा था, अगर उस दिन 50 पे भी खुलता है, then as well I'll go and invest something, right। मंथली इनकम में से कुछ तो 10-15% उठा के मैं डाल दूंगा, and I'll be ready for that because I know the potential of this particular thing, right। So basically this is how companies can literally what do we call it, raise funds through public, and this is what we call initial public offering. Simple as that. Now let us talk about indices, exchanges and brokers, right? Indices, so okay, सबसे पहले let us talk about exchanges. There are two major exchanges. First one is NSE, and who doesn't know BSE? किसको नहीं पता BSE, right? 90 से पहले, or let us say 91 से पहले, BSE was in market. Like BSE was dominating the market. Everyone wanted to buy shares through BSE only. कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड है, सीधे BSE से ही लोग खरीदेंगे। बट देन ऑफ कोर्स हर्षद मेहता स्कैम केम इन, उसके बाद केतन पारेख, उसके बाद जो भी है 3-4 स्कैम 1990 से लेके 1996-7 तक 3-4 स्कैम्स आ गए थे बाहर, राइट। बिकॉज ऑफ विच व्हाट हैपेंड वाज कि लोगों का यहाँ से ध्यान हट गया, राइट। पीपल स्टार्ट, अब हमारे पेरेंट्स को अगर हम लोग जाके पूछे कि स्टॉक मार्केट में पैसा डालना चाहिए या नहीं डालना, दे विल बी अगेंस्ट इट। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर्षद मेहता, केतन पारी की बड़े बड़े स्कैम्स को सुना है, एंड दे नो कि दिस इज नॉट समथिंग वर्क्स आउट, राइट। सो आफ्टर दैट NSE came into the picture. SEBI started what do we call it, promoting NSE more and more, right? So a lot of people got shifted to NSE and now they trust NSE, राइट। से बड़े बड़े मेजर तो एक्सचेंजेस हैं, इंडिया हैज़ मोर देन 180 प्लस एक्सचेंजेस। हर स्टेट का एक अलग एक्सचेंज है, और और भी डिफरेंट इंडिविजुअल एक्सचेंजेस लोगों ने खोल रखे हैं, राइट। सो वी हैव 180 प्लस एक्सचेंजेस इन इंडिया, एंड exchanges are basically, for example, if you want your company to be traded, आपके शेयर्स आपको ट्रेड करवाने हैं, you want people to trade, so you will get yourself registered into either NSE or BSE or both, राइट। दोनों 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 एक्सचेंजेस पे यूल गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड, राइट। अब लोग इन चीज़ों को खरीदेंगे इसे कैसे, राइट। NSE क्या संभालती है? NSE हमारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करवाते हैं, राइट। सॉरी, NSE मेंटेन्स द रिकॉर्ड एंड एवरीथिंग, right? They get companies registered to themselves and they'll keep data and everything. ये सारा काम उनका है,
अब ऑर्डर एग्जीक्यूशन के लिए दे हैव ब्रोकर्स, राइट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रोकर्स. ब्रोकर्स क्या होता है? ब्रोकर्स आर बेसिकली a medium for us to buy and sell shares on this exchanges, right? So there are two types of brokers. The first one is discount broker, second one is normal broker, right? 2000 से पहले नॉर्मल ब्रोकर्स पे लोग सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, और आज भी सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल ब्रोकर्स भी बोल सकते हैं आप इनको. पीपल आर लिटरली इनटू देम ओनली. एंड डिस्काउंट ब्रोकर आर बेसिकली जिनको सिर्फ आपके ऑर्डर एग्जीक्यूशन से मतलब है, right? They don't provide any facilities, they don't provide, let us say, extra margins. ज़्यादा margins भी provide नहीं करते हैं और ज़्यादा facilities भी provide नहीं करते हैं. Of course कुछ brokers हैं discounts जो ज़्यादा margins provide करता है, leverage provide करता है. leverage पे भी आऊँगा मैं, what are leverages and everything, right? So discount broker is the guy जो आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कराता है. मेनली काम उसका यही है कि आपके ऑर्डर्स NSE and BSE पे एग्जीक्यूट करवाएगा. आपने इनके पास अकाउंट खोला, बहुत सस्ते चार्जेस होते हैं इनके. अगर यहाँ पे जाओ आप तो 3 से 4 हज़ार में पहले अकाउंट खुलता था, ICICI बैंक और कोटक बैंक सिक्योरिटीज़. और यहाँ पे अगर आप जाओ तो 3 से 4 हज़ार में तो डीमेट अकाउंट खुलता था, अगर शेर खान और इन ट्रेडिशनल ब्रोकर्स के पास जाओ तो. यहाँ पे यू हैव टू पे 200 रुपीज़ नाउ and you can open your demat account. Demat account is where your all the shares are stored. आपने जो भी खरीदा, पहले क्या होता था 90 से, नॉट 90 से पहले, 80 से पहले क्या होता था, आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता था, किसी बैंक के थ्रू आप खुलवाते थे उस चीज़ को, और फिर जो भी आप शेयर्स लेते थे उसका आपको एक रिसीट मिलती थी, राइट? देखा होगा आपने कि ब्लू चिप स्टॉक्स है, अगर बहुत छोटे स्टॉक्स है तो ब्लू रिसिप्ट मिलती है, बड़े स्टॉक्स है तो पिंक रिसिप्ट मिलती है, राइट? ये सारी रिसीट्स पे काम होता था पहले, राइट? रिसीट एंड स्टैम्प्स और इन चीज़ों पे काम होता था. अब डीमेट अकाउंट्स आ गए जहाँ पे ऑल यू टू डू इज यू हैव टू ओपन एन डिजिटल अकाउंट जहाँ पे आपके शेयर्स वगैरह स्टोर होंगे. सिंपल एज दैट, राइट? कुछ नोट्स नहीं, कुछ नहीं, कुछ पेपर्स नहीं, नथिंग एज सच, राइट? अब इन दोनों में मेजर डिफरेंस बस यही है कि दिस गाइज प्रोवाइड एडवाइजेस एज वेल. ये लोग हमारी पोजीशन, इंट्राडे पोजीशंस को पहले करते थे कि आपकी पोजीशंस को सीधे ये लोग कैरी फॉरवर्ड भी करा देते थे इंट्राडे लेवरेज प्रोजेक्ट, लेवरेज ली हुई पोजीशंस को, राइट? लेवरेज मतलब लोन लेके जो पोजीशंस लेते हैं हम लोग, राइट? मल्टीपल टाइम्स ऑफ योर अकाउंट, राइट? तो वो पोजीशंस ये लोग डिलीवरी में भी करवा देते थे. आजकल क्या है, 3-15 पे आपका डिस्काउंट ब्रोकर आपकी पोजीशन काट देगा बिना पूछे, अगर इंट्राडे पोजीशन ली हुई है आपने तो. सो दैट इज द मेजर डिफरेंस. दूसरी चीज़ ये है कि ये लोग एडवाइसेस भी देते थे पहले, वेयर टू इन्वेस्ट एंड नॉट टू इन्वेस्ट. ये जो बड़े बड़े ब्रोकर हाउसेस थे वो बड़े बड़े ट्रेडर्स चलाते थे, एंड दे यूज्ड टू एडवाइस क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है. इनका एज सच कोई काम नहीं है. ऑल व्हाट दे केयर इज आपको कुछ खरीदना है, ऑर्डर डालो, विल एग्जीक्यूट इट. कुछ बेचना है, ऑर्डर डालो, विल एग्जीक्यूट इट. सिंपल एज दैट. 3-15 के बाद ऑर्डर आपकी अगर MIS पोजीशन है तो हम लोग आपकी पोजीशन काट देंगे. सिंपल एज दैट. अब इनका ये रहता था कि अगर आप, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप इनकी नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से इनकी ब्रोकरेज रहती थी कि अगर 10 शेयर खरीदे हैं तो 10 रुपये का आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा. 500 शेयर खरीदे हैं और लेवरेज भी अच्छा खासा लिया है तो 1000-2000 का ब्रोकरेज देना पड़ेगा आपको. ऐसे इनके ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई हुआ करते थे. एंड डिस्काउंट ब्रोकर्स केम इन लेट अस से आफ्टर 2008-9 India at least, right? And very first one was Zerodha, and then came in Upstocks and Angel Broking and everything, right? इन लोगों के चार्जेस सिंपल हैं. आप कितनी भी क्वांटिटीज लो, कुछ भी करो, इक्विटी में ये लोग 20 रुपए का आपका जो भी है, मतलब हर किसी के अलग अलग चार्जेस. ऑफकोर्स कुछ कुछ लोग 10 रुपए लेते हैं पर ऑर्डर, राइट? कुछ कुछ लोग पर ट्रेड, मतलब आपने कुछ बाय किया और उसको बेचा, मतलब दोनों का मिला के आपको सिर्फ 20 रुपए देना है. कुछ कुछ लोग सिर्फ 100 रुपीज़ लेते हैं. लेकिन इफ़ यू गो टू दिस डिस्काउंट ब्रोकर्स, यहाँ पे ना तो आपको, या वेलकम टू दैट, राइट? यहाँ पे ना तो आपको एज सच कुछ डिस्काउंट मिलेगा, ओपनिंग चार्जेस इतने हैं, बट फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है. मतलब यहाँ पे इफ़ यू ओपन योर अकाउंट यू विल गेट व्हाट डू कॉल इट, हाँ, यहाँ पे अगर आप एक अकाउंट ओपन करते हो तो आपको एक डेडिकेटेड उनका सेल्स एग्जीक्यूटिव मिलेगा, who will be keep watching your trades. आपके ट्रेड्स कहाँ चल रहे हैं, क्या है, they'll keep watching your trades and they'll, of course, हर एग्जीक्यूटिव के पास 4-4 5-5 ऐसे क्लाइंट्स होते हैं, राइट?
एंड what all they do is they'll keep executing your trades. अगर आपकी तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, कुछ इशू आ गया, इंटरनेट इशू समथिंग, तो यू कैन जस्ट कॉल देम एंड आस्क देम टू अनवाइंड योर पोजीशन, एग्जिट करवा देते हैं पोजीशन एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट. सो ये सब इनकी रहती हैं सर्विसेज. यहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्विसेज नहीं मिलती हैं आपको. डिस्काउंट ब्रोकर, of course you can call and unwind your position, exit your position, but उसके लिए you need time. लेकिन यहाँ पे you'll get a proper support. So that is the major difference in between discount broker and a normal broker. Right? और आजकल discount broker का ही समान है, right? Because of course लोग पढ़े लिखे. 90s में क्या होता था, literally 1% of the people who are into market, literally 1% लोग पढ़े लिखे होते थे. पढ़े लिखे ऐसे मार्केट के बारे में जिनको नॉलेज है, not talking about graduation or something like that, right? So literally 1 to 2% ही लोग हुआ करते थे जिनको सब के सब लोग फॉलो करते थे. उनका पोर्टफोलियो आता था मैगजीन्स में कि ये चीज़ उन्होंने खरीद रखी है, उन चीज़ों को लोग खरीदते थे, कॉपी करते थे ट्रेड्स. ये सारी चीज़ें पहले भी होती थी. आजकल सब डिजिटल हो गया बेसिकली, राइट. आजकल लोगों को इन्वेस्टिंग पता है कैसे होती है, क्या चीज़ है, राइट. लेकिन पहले पीपल यूज्ड टू फॉलो दिस बिग गाइज, राइट. इसीलिए तो दे वर एबल टू मैनिपुलेट, क्योंकि उनके पास अलग अलग लोग थे, दे हैड अ लार्जर ऑडियंस हु विल बाय एनीथिंग इफ दे आस्क देम टू बाय, राइट. सो पहले ये चीज़ें हुआ करती थी, अब नहीं होती है, इसलिए डिस्काउंट ब्रोकर का ज़माना, राइट. So this is the major difference, and what I prefer Zerodha and angel booking. Option selling जो मैं करता हूँ वो angel booking में करता हूँ, right, and option buying I prefer Zerodha. Basically मेरा capital मैंने divide कर रखा है and I'll keep switching in between off and on, right. So these are the major differences between brokers. अब indices क्या होता है, ठीक है. Let us say हमारे पास दो major exchanges हैं, NSE and BSE, right. So all those top 50 companies registered. अब 50 कंपनीज से, टॉप 50 कंपनी से मेरा मतलब ये नहीं है कि प्राइस वाइज 50, जैसे MRF 90,000 का है, और ये सारे स्टॉक्स जैसे बजाज फाइनेंस 3-4 हज़ार का चल रहा है, राइट. तो इनकी प्राइस के हिसाब से नहीं, इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल कैपिटलाइजेशन कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स बीइंग ट्रेडेड इन मार्केट, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस, शेयर मार्केट प्राइस, पर्टिकुलर शेयर का मार्केट प्राइस, राइट. जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे मार्केट प्राइस से, तो हमारा क्या आता है, कैपिटलाइजेशन उस पर्टिकुलर कंपनी का, राइट. और वैल्यूएशन जो भी आपको, राइट. सो टॉप 50 वैल्यूड कंपनी रजिस्टर्ड ऑन NSE, उनको एक हमने इंडाइस का नाम दे दिया है, राइट. सो एक परफॉर्मिंग इंडाइस हमको पता चलता रहे कि टॉप 50 जो कंपनीज हैं NSE पे, जो रजिस्टर्ड टॉप 50 कंपनीज हैं, वो कैसे वो ओवरऑल कैसे परफॉर्म कर रही है मार्केट में, ओवरऑल बुलिश है या वो ओवरऑल बेरिश है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राइट. सो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग they have kept this top 50 valued company in a basket, let us say, right. और उस बास्केट को एक इंडाइस नंबर दे दिया, राइट. तो उस बास्केट का जो भी नंबर है वो फ्लक्चुएट होता रहता है उसके स्टॉक्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पर, ठीक है. और वो जो भी फ्लक्चुएशन का उनका मैथमेटिक्स है वो उनका खुद का है, नथिंग एज सच कि सारे स्टॉक्स को प्लस कर दिया, राइट. सो फॉर एग्जांपल NSE का जो टॉप 50 का जो ये बास्केट है इसको बोलते हैं निफ्टी 50, वी कॉल इट निफ्टी 50. टॉप 50 का जो बास्केट है NSE का, वी कॉल इट निफ्टी 50, राइट. एंड इसका जो नंबर चल रहा है इंडेक्स, इस पर्टिकुलर इंडेक्स का जो नंबर चल रहा है वो है अभी 14,900 के आसपास, सिंपल एज दैट, ठीक है. BSC का जो है, BSC का जो मेजर इंडाइस है वो है टॉप 30 कंपनीज का, राइट. सो जो भी टॉप 30 वैल्यूड कंपनी रजिस्टर्ड है BSC पे, राइट, तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स को हमने नाम दिया हुआ है सेंसेक्स. आपने सुना होगा कि सेंसेक्स गिर गया, सेंसेक्स बढ़ गया, राइट. तो ये क्या चीज़ है, इट इज़ ओवरऑल परफॉर्मिंग नंबर ऑफ टॉप 30 कंपनीज रजिस्टर्ड ऑन BSC, राइट. तो ये सारी बास्केट में आती है, सेंसेक्स बास्केट में आती है, और ये अभी चल रहा है समवेयर अराउंड, लेट अस से अराउंड कीप वॉच, ये अभी चल रहा है 49,500, राइट. सो दिस इज व्हाट इंडाइसेस आर.
अब हर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का अलग इंडाइस है, राइट। लेट अस से एक निफ्टी 50 है, उसके बाद निफ्टी 100 है, एक निफ्टी 100 है, राइट। सो यू नो टॉप 100 कंपनीज आफ्टर दिस 50 कंपनीज, इन 50 कंपनीज के अलावा जो टॉप 100 कंपनीज हैं इनके बाद, राइट। सो वो सारी कंपनीज इस पर्टिकुलर इंडाइस में आती है, ठीक है। उसके बाद एक हर इंडस्ट्री का एक अलग इंडाइस है, जैसे निफ्टी फार्मा हो गया, निफ्टी लेट अस से व्हाट डू यू कॉल इट, निफ्टी फार्मा हो गया, वो नाम याद नहीं आ रहा, राइट। सो एक हर इंडस्ट्री का एक हर अलग वो है, राइट। जैसे निफ्टी स्टील हो गया, राइट। सो एक अलग अलग इंडाइसेस का इन्होंने वो दे रखा है, नाम दे रखे हैं, और उन सब में वही कंपनीज आती हैं जो उस पर्टिकुलर चीज में काम कर रही है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी बैंकिंग स्टॉक्स हैं हमारे, राइट। तो बैंकिंग स्टॉक्स किस में आते हैं, बैंक निफ्टी में, राइट। तो जो भी जितने भी बैंकिंग स्टॉक रजिस्टर्ड हैं बड़ी बड़ी बैंक्स के, राइट, 30 स्टॉक्स इसमें आते हैं, 30 स्टॉक्स विच आर रजिस्टर्ड ऑन निफ्टी, सॉरी एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, राइट। तो वो सारे स्टॉक्स जो हैं उनको एक इंडाइस नेम दे दिया है, उनके ग्रुप को एक इंडाइस नेम दे दिया है बैंक निफ्टी, राइट। सो ऐसे हर किसी के हर इंडस्ट्री के अलग अलग हमारे पास हुआ, सिंपल एज दैट, राइट। जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और ये सारी चीज़ें, और सेम चीज़ सेंसेक्स पे भी है, राइट। तो एवरी सिंगल इंडस्ट्री हैज देयर ओन index in market. So basically these are what indices are, and you cannot buy indices directly. आप सीधे जाके इंडाइसेस नहीं खरीद सकते, उसके लिए आपको उनके कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदने पड़ेंगे, जो एफएनओ में आता है, जो चीज़ हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, राइट। सो बेसिकली दिस इज व्हाट बेसिक्स ऑफ मार्केट आर, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस ट्रेडिंग क्या होती है और इन्वेस्टिंग क्या होती है, दो मेजर डिफरेंस जो है मार्केट में, लेट अस डिस्कस दैट। वेरी फर्स्ट थिंग इज ट्रेडिंग, राइट, जो चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखने आए हैं, और इन्वेस्टिंग, राइट। Investing is when you buy a particular stock and hold it for let us say 10 years, 15 years, 10-15 साल के लिए जब आप एक पर्टिकुलर चीज़ को बाय करते हो और उसको होल्ड करके रखते हो, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग, राइट। सो आपने फॉर लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ योर्स कि आपने खरीदा रिलायंस का एक शेयर, राइट। आपको लगा कि अगले 15 साल 20 साल बाद भी रिलायंस जो है विल एग्जिस्ट एंड विल गिव टफ कॉम्पिटिशन टू ऑल द न्यू बीज, जो भी नए नए लोग मार्केट में आएंगे, रिलायंस विल बी द बिगेस्ट जायंट आउट देयर इन एनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री वेयर दे आर वर्किंग, लेट अस से रिलायंस जियो या फिर रिलायंस पेट्रोलियम, जो भी चीज़ है, एविएशन, राइट। तो ये सारी चीज़ें आगे जाके भी दे विल बी डूइंग प्रीटी गुड इन मार्केट इज व्हाट यू थिंक। तो आपने खरीद लिया इसको 10-15 साल के लिए, सो यू इन्वेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर कंपनी, now you own that much amount, let us say invest, आपने रिलायंस के let us say 10,000 shares खरीद लिए, right, and now 10,000 shares of Reliance are almost let us say 5% of whole Reliance, so now you are owning 5% of Reliance, राइट। और उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड हीट, मतलब जो भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं, जो भी लॉसेस हो रहे हैं, उनके बेसिस पे उतना पर्टिकुलर परसेंटेज के हिसाब से, एक सिंपल लैंग्वेज में से समझा रहा हूँ आपको, एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, एक सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि जो भी पर्टिकुलर परसेंटेज आप होल्ड करते हो उस कंपनी का, उस बेसिस पे या तो आपको शेयर्स मिल जाएंगे, शेयर्स में आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा, या फिर आपको एक डिविडेंड के हिसाब से अलग से पेमेंट मिलेगा, सिंपल एज दैट, इफ यू होल्ड अ बिग अमाउंट, राइट। तो हर साल कुछ ना कुछ ऐड होते रहेगा आपके इसमें, राइट। सो दिस व्हाट वी कॉल इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग। आपने कंपनी को देखा, आपने देखा कि कंपनी क्या कर रही है, कैसे कैसे काम करती है, आगे 10 सालों में आपको लगा कि 10 सालों में रिलायंस विल बूम आउट, दिस इज, आपको लग रहा है कि जैसे फोर्टिस है, राइट। तो फोर्टिस में अभी उनके प्रमोटर्स चेंज हुए हैं, जो भी चीज़ है, राइट। तो आपने उस पूरे हॉस्पिटल या फिर ये जो चेन ऑफ हॉस्पिटल्स का जो भी है इनका मेडिकल लाइन में, वो सारी चीज़ें आपने पढ़ी, आपको लगा कि दे आर डूइंग प्रीटी गुड, राइट। जैसा एशियन पेंट है, यू फील कि उनकी जो टेक्नोलॉजीज हैं और वो सारी चीज़ें अच्छे से काम कर रही हैं, एंड दे आर कीप इनोवेटिंग, they'll keep innovating, they'll come up with new thing every single month out there, every single year, right? And you think that आगे 10-15 सालों में भी they'll exist in market, right? So in that case you can just buy and invest in that particular company, right? So what you're doing is you're going through their fundamentals कि आगे क्या कंपनीज कर सकती हैं, उनका बिजनेस आइडिया क्या है, उनके जो प्रमोटर्स हैं उनका माइंडसेट कैसा है, उनका विजन कैसा है,
राइट। ऑफ कोर्स हम लोग उसके पुराने जो डेटाबेस है या जो भी परफॉर्मेंस है वो भी देखेंगे उस स्टॉक का। सिंपल एज दैट। सो दिस व्हाट वी कॉल इन्वेस्टिंग, राइट। अब ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग का जो है वैल्यू से कुछ मतलब कि कंपनी की क्या वैल्यू है, क्या चीज़ कंपनी कर रही है, उन चीज़ों से हमको यहाँ पे मतलब नहीं है, राइट। हमको सिंपली यहाँ पे किस चीज़ से मतलब है कि कंपनी का चार्ट क्या बोल रहा है, राइट। चार्ट से जो आपने समझे, राइट। ट्रेडिंग क्या होती है? बेसिकली जब आप एक पर्टिकुलर चीज़ को सुबह खरीदते हो, शाम को बेचते हो, या फिर आज खरीदा 10 दिन बाद बेच दिया, राइट। तो आपको उस पर्टिकुलर चीज कंपनी के चार्ट्स में लग रहा है कि एक पर्टिकुलर लेट अस से जिसको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता होगा, राइट। तो लेट अस से कंपनी इज ट्रेडिंग समवेयर ओवर हियर, उसका एक सपोर्ट टूटता है, तो आपको लगता है ये सपोर्ट टूटा तो यहाँ तक कंपनी कैन स्लिप आउट, इज व्हाट यू फील, राइट। सो इन दिस केस व्हाट यू विल बी डूइंग इज सिंपली यू विल वेट एंड यहाँ पे आप शॉर्ट कर दोगे पोजीशन, राइट। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ऑल दोस हु नो व्हाट शॉर्ट सेलिंग इज उनके लिए, राइट। तो हमको सिंपली क्या करना है, कंपनी के चार्ट्स देख रहे हैं, कैंडल्स देखनी है, पैटर्न्स समझने हैं, एंड ये ढूंढ के निकालना है कि अगले 10-15 दिन में ये चीज़ पर्टिकुलर क्या कर सकती है, ये जो चार्ट है ये क्या कर सकता है। हमको कंपनी से मतलब नहीं, हाँ ऐसा कुछ है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं समथिंग लाइक दैट, तो वी कैन डू इट, राइट। और इस हमको सिर्फ चार्ट से मतलब है। जो लोग न्यूज़ वगैरह से भी ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी ये है कि न्यूज़ वगैरह से भी कुछ नहीं होता है मार्केट में, पहले होता होगा, पहले के लोग करते होंगे, और जिनको आता है दे कैन डू इट। लेकिन एज अ न्यू भी अगर आपको लग रहा है कि एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 123% का राइज आया था रिलायंस के प्रॉफिट्स में इस फाइनेंशियल ईयर या क्वार्टर जो भी है, राइट। लेकिन उन 3 से 4 दिन रिलायंस का स्टॉक वॉज लिटरली फॉलिंग, राइट। 2050 से वो स्टॉक सीधे 1920 पे आके गिरा, रुका, राइट। 2050 से सीधे यहाँ पे आके रुका। न्यूज़ तो बहुत अच्छी थी लेकिन इट डिडंट वर्क आउट। लेकिन जिन जिन लोगों ने सिर्फ चार्ट देखा, जिन जिन लोगों ने न्यूज़ को अवॉइड किया, सिर्फ चार्ट देखा, उन्होंने फिगर आउट किया कि क्या हो रहा है, चार्ट क्या बोल रहा है, प्राइस क्या बोल रही है, प्राइस को अंडरस्टैंड किया, जो चीज़ हम आने वाले दिनों में समझने वाले हैं। तो जिन जिन लोगों ने इस चीज़ को समझा, फॉर देम इट्स वेरी गुड, दे वुड हैव, राइट। सो उन्होंने फॉर एग्जांपल जो भी उनको एक पैटर्न दिखा, उनको चार्ट समझ में आए, तो उन्होंने एक ट्रेड लिया होगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी है, इंट्राडे में शॉर्ट किया होगा या लॉन्ग टर्म में शॉर्ट किया होगा, राइट। तो दिस इज व्हाट वी कॉल trading, when you buy and hold it for when you buy and you hold it for a longer period, not longer period, when you hold it for a day or a short term period, राइट। जैसे 2-3 महीने के लिए कुछ आपने खरीद के रख लिया, राइट। सो वी कॉल इट अ ट्रेड। और इन्वेस्टिंग क्या होती है? व्हेन यू बाय इट एंड आपके फंडामेंटल्स वगैरह देख के आप उस पर्टिकुलर चीज़ में इन्वेस्ट करते हो। ट्रेडिंग इज व्हेन यू जस्ट चेक आउट चार्ट्स, चार्ट्स में क्या हो रहा है, प्राइस क्या बोल रहा है, पैटर्न्स क्या बोल रहे हैं, एंड यू एंटर एंड यू मेक योर पोजिशन अकॉर्डिंगली, राइट। सिंपल एज दैट। नाउ हियर्स द थिंग, here's the thing, there are three types of trading. First one is scalping, second one is intraday, third one is swing, एक और होती है positional, but let us discuss this three only, right? Scalping is basically when you enter a trade and you exit in, let us say, less than a minute or less than 2-3 minutes, 2 से 3 मिनट में आपने एंट्री ली और एग्जिट ले लिया, सिंपल, राइट। लेट अस से एक पर्टिकुलर चीज आपको देखिए कि 100 पे है, आपने उसको 100 पे बाय किया, 103 पे बेच दिया, छोटा सा आपने स्कैल्प लिया और 3 रुपए का आपने प्रॉफिट बुक कर लिया यहाँ पे, सिंपल एज दैट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल स्कैल्पिंग, राइट। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? अब ऑफ कोर्स स्कैल्पिंग के लिए यू नीड अ वेरी बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए आपको। देर आर ट्रेड जब आई ऑल्सो डू स्कैल्पिंग इन सम काइंड ऑफ ट्रेड्स। देर वॉज अ ट्रेड जहाँ पे मैंने आई एंटर्ड एट 350 ऑड लेवल्स, 350 में मैंने एंट्री ली, राइट। मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था उस दिन, वॉलेटाइल मतलब बहुत ज़्यादा स्पीडी मूव दे रहा था इधर उधर, राइट। ऊपर की तरफ की मूव्स, बेरिश भी मूव्स, बुलिश मूव्स, सारे मूव्स दे रहा था बेसिकली उसी दिन, राइट। सो उस दिन व्हाट आई डिड वाज आई एंटर्ड एट 350,
जैसे ही इट वेंट 390 इन लेस देन अ मिनट भी नहीं हुआ था, इन 30 or 40 सेकेंड itself I entered at 350, I was exiting the position at 340. In less than a minute I was in and out and I made 40 points. Simple as that. अब of course आप लोगों को इसमें टाइम लगेगा, बट एक एग्जांपल लेके समझ रहे हैं हम लोग कि स्कैल्पिंग क्या होता है, राइट. इंट्राडे ट्रेडिंग इज वेयर यू होल्ड योर ट्रेड फॉर लेट अस से मोर देन 10-15 मिनट्स, राइट. 10 से 15 मिनट से ज़्यादा आप किसी भी ट्रेड को होल्ड करते हो तो उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, राइट. अब कितना भी टाइम हो सकता है, इट कैन बी 3 hours एज वेल, इट कैन बी 4 hours एज वेल, इट कैन बी 6 hours एज वेल, but it can be any time, right? So basically what you're doing is you are simply entering a trade, waiting for a big momentum. यहाँ पे हम लोग छोटे मोटे पॉइंट्स के लिए नहीं ट्रेड करते, यहाँ पे हम लोग बड़े पॉइंट्स के लिए ट्रेड करते हैं. So if I'm entering at 100, I'll wait till at least 120 or 30. Right, I'm not talking about stocks, I'm talking about options. Right, if I'm entering in stock, right, तो scalping में क्या होगा, I'll enter a stock at 230, let us say 230 पे मैंने एंट्री ली, I'll exit at 231 itself, राइट. लेकिन अगर इंट्राडे ट्रेड ले रहा हूँ तो I'll एटलीस्ट वेट कि 230 से मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करूँ एटलीस्ट 235 और 6 तक, राइट. तो एक बड़ा ट्रेड के लिए भी को एक प्रॉपर आर रेशियो हमारा मेंटेन करता है, रिस्क लेके रिवॉर्ड लेके सारी चीज़ें मेंटेन करके हम लोग अंदर जाते हैं एक ट्रेड में. वी वेट फॉर इट टू गिव अस अ ह्यूज मोमेंटम, बड़ा मोमेंटम लेके हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं. स्विंग ट्रेडिंग इज व्हेन यू होल्ड योर पोजीशन ओवरनाइट. इसको आप ओवरनाइट ट्रेडिंग भी बोल सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग भी बोल सकते हो. आपने किसी चीज़ को बाय किया आज, यू बाय समथिंग टुडे, यू वेट फॉर इट टू गो अप, लेट अस से एग्जांपल लेते हैं. अब इस पर्टिकुलर चीज़ में इंट्राडे में आपको बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा, मैक्स टू मैक्स 230 से 240 मिल जाएगा, लाइक अगर आपको चाहिए, अगर आपका टारगेट है 250 260 तक ये पर्टिकुलर स्टॉक जा सकता है. सो इन दैट केस व्हाट यू विल बी डूइंग इज 230 पे आपने एंट्री ली, यू विल वेट टिल एटलीस्ट 250 और 60. तो यहाँ पे आपको एक दिन में तो इतना बड़ा मोमेंटम मिलने से रहा, right? You will not get this huge momentum in a single day, right? If we do intraday trade, you will be getting, like, let us say 5 to 10 rupees momentum in a 200 rupees stock. This is also maximum. I'm talking about maximum momentum, right? So if you're doing an intraday trade, you'll be getting maximum 5 to 10 points in a 200 rupees stock, right? And if you want to go for, let us say, if your target is, if you're buying something at 230, your target is 240 to 50 to 60 at least, right? So in that case what you'll be doing is you'll be entering and you'll be holding your positions overnight, right? You'll be holding your positions overnight because आपको ये particular momentum जो है, you'll be getting this kind of huge momentum in 2 3 4 5 days, right? एक दिन का काम नहीं है ये. So in intraday we get in for small momentums like 5 to 6 points, right? In scalping we get in for 1 or 2 points momentum, we get in and we get out of trade in, let us say, less than a minute or 2 minutes or 5 minutes, right? Is what scalping is. And swing trading is when you get in a trade, you wait for it for a certain percentage of increment, right? For example, if you're entering Reliance at 1930 odd levels, right, you'll wait for it. If you're entering it for swing, you'll wait for it at least to reach out till at least 2100 or 2300 all time high. In same case, if you're entering intraday trade, in this particular case what you'll be doing is you'll be entering at 1930, you'll be out at 1940 or max to max 1945. You'll hold your positions till the hair only, right? And in scalping, you'll get in at 1930, you'll get out at 1932. Small points. So this is what scalping is, this is what intraday is, and this is what swing is. Now what is leverage? The main thing is leverage. The major difference is leverage. Right? What is leverage basically? Leverage is basically when you take loan from your broker to buy something on an intraday level. राइट, एक ही दिन में जब आप अपने ब्रोकर को बोलते हो कि मेरे को MIS पोजीशन चाहिए, इंट्राडे पोजीशन चाहिए, जहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर चीज़ को बाय करूँगा, अभी सुबह बाय करूँगा 9:15 के बाद, राइट, एंड यू जस्ट गिव मी लोन, राइट, आई विल बाय इट एंड आई विल सेल इट बिफोर 3:15 और एल्स यू कैन सिंपली exit my position by yourself before 3:15, राइट. डिस्काउंट ब्रोकर जो है आपकी 3-15 पोजीशन काट देगा. लेवरेज क्या होता है बेसिकली? सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, यू हैव 10,000 rupees in your demat account, right? So in this case what will be happening is
you can ask your broker that I want to buy, right? So basically using leverage, you can buy 10x of stocks, right? You can literally buy 10x amount. You can take leverage, you can buy 10x amount of your particular capital. So for example, you have 10,000 rupees in your account, so you can buy shares worth rupees a lakh. If you have 1 lakh in your demat account, if you're taking 10x leverage, you can literally buy, let us say, 10 lakh rupees worth share, राइट अगर हमारे अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, राइट, तो अगर हम लोग 10x लेवरेज यूज करते हैं, राइट, तो हम लोग लिटरली 1 लाख वर्थ के शेयर्स बाय कर सकते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल एक शेयर है जो 1,000 रुपए का है, right? So in this case, a particular share is priced at 1,000 rupees. We have 10k in your account, and you ask your broker to give you 10x leverage, right? And after and before taking leverage, all what you can buy is 10 rupees. Sorry, 10 shares, right? And if in case this particular stock goes from 1,000 to, let us say, 1,020, right? 20 points momentum into 10 shares you have bought on your capital, right? So you will be making 200 rupees profit over here on 10k capital. Simple as that. Right. Now, if you just use 10x leverage, right? So by using 10x leverage, you can buy worth rupees 1 lakh. So in this case, if we divide by 1,000 rupees, that is 100 shares. You can literally buy 100 shares over here. Right. So in this case, if you buy 100 shares, right? Sorry. So if you buy 100 shares into 20 rupees momentum you got in this particular stock is equals to 2,000 rupees profit. राइट, यहाँ पे क्या हुआ, हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए बिकॉज वी यूज लिवरेज। हमने ब्रोकर से लोन लिया एंड वी प्रोमिस्ड कि 9-15 के बाद ट्रेड लूंगा, और ऑफ कोर्स मार्केट से 9-15 के बाद खुलता है, और 3-15 से पहले पहले मैं मेरी पोजीशन, नो मैटर व्हाट लॉस में प्रॉफिट में, आई एग्जिट माय पोजीशन इज व्हाट यू हैव प्रॉमिस्ड। सिंपल एज दैट, राइट। सो इन दिस केस यू विल बी गेटिंग ह्यूज प्रॉफिट्स, राइट, बट देन ऑफ कोर्स ह्यूज प्रॉफिट्स लेने के लिए ह्यूज रिस्क भी इन्वॉल्व है, right? So for example, you entered this trade at 1,000 rupees, your stop loss is 990, आपका stop loss जो है 990 का है। So in this case आप क्या करोगे, you only have one option that आपको, अगर आपने 100 शेयर्स लिए हैं 990 पे, अगर आपका स्टॉप लॉस आ जाता है 10 पॉइंट नीचे, अगर स्टॉक गिर जाता है, राइट, तो 10 रुपीज लॉस हो गया आपको, राइट। 10 रुपीज लॉस इंटू 100 शेयर, दैट इज 1,000 रुपीज रिस्क, राइट। सो यू हैड 10k इन योर अकाउंट, आपके पास 10,000 थे, पहले ही लॉस में आपने 1,000 रुपये उड़ा दिए, ऑलमोस्ट 10% ऑफ योर कैपिटल, राइट। लेकिन ऑफ कोर्स इतना बड़ा छोटा ही कैपिटल है हमारा, लेकिन इन दिस केस अगर आपके पास, लेट अस से मेरे पास 2.5L का कैपिटल है, अगर मैं 10x लेवरेज यूज करता हूँ, मतलब मैं 25 लाख के शेयर उठा सकता हूँ, राइट। तो अगर मैं 25 लाख के शेयर उठाता हूँ, 25L के शेयर्स में उठाता हूँ, और मेरा स्टॉप लॉस आ जाता है, राइट, और लेट अस से मेरा 10% कैपिटल चला जाता है, राइट, तो 2.5 लाख का 10% इज ह्यूज, राइट, 25,000 होता है ऑलमोस्ट, और इतना बड़ा रिस्क आई कैन नॉट अफोर्ड टू टेक दिस ह्यूज रिस्क, राइट। मैक्सिमम रिस्क आई कैन अफोर्ड इज 2 और 3%, राइट। सो जब आपका कैपिटल छोटा होता है यू कैन टेक ह्यूज रिस्क, जब कैपिटल बड़ा होता है यू नीड टू स्टॉप टेकिंग रिस्क, बड़े रिस्क आप नहीं ले सकते। सिंपल एज दैट। व्हाट इज लेवरेज, राइट। अब लेवरेज बहुत अच्छी चीज भी है फॉर दोज हु नो हाउ टू ट्रेड इन मार्केट, लेवरेज इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, right, very good service by brokers for all those people who know how to trade in market। लेकिन जो बड़े लोग, जो नए लोग हैं मार्केट में, जो बड़ा पैसा लेके आ गए, let us say someone, if I would have entered in market with, let us say, 1 lakh, I have 1 lakh rupees in my demat account, I have entered the market, in this case what will happen with me is, मेरे को कुछ पता नहीं, मेरे को बस ये पता है कि लेवरेज की मदद से मैं ज़्यादा शेयर्स उठा सकता हूँ। एवरी टाइम आई एंटर आई विल कीप बाइंग ह्यूज क्वांटिटी, और ठीक है, यहाँ पे तो आपको, मेरे को तो पता है कि 990 पे मेरा एसएल जाना है, लेकिन बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता कि कहाँ एसएल लगता है, कहाँ टारगेट लगता है। तो इन दिस केस व्हाट दिस गाइज विल बी डूइंग इज, सीधे ही 990 पे तो एग्जिट करेंगे नहीं, 960, 940, 930 तक आ गया, सीधे 70% अकाउंट हो जाएगा एक ही दिन, राइट। जैसे लेट अस से 100 शेयर्स लिए थे, इन 2000 पे हमारी एंट्री थी, राइट,
और सीधे 9:30 पे आके एग्जिट ले रहे हैं, 3:15 पे पोजीशन ब्रोकर ने काट दी। आप तो लॉसेस तो बुक करोगे नहीं आप कभी, राइट। 100 पे 1000 पे एंट्री है, 105 किया तो आप बुक कर लोगे, प्रॉफिट की जितना प्रॉफिट आया मेरे लिए अच्छा है, लेकिन लॉसेस तो हम कभी बुक करते ही नहीं है। So this case what will happen is, let's say you booked 70 points loss, 70 points into 100 is equals to almost 7,000 rupees, right? So you lost 7,000 rupees of your 10k capital in a single day. तो leverage आपके लिए खराब भी है for new people, and it's a very good product for नए लोगों के लिए, sorry, पुराने लोगों के लिए, for all those people who know how to trade in market, right? So how much one should use leverage, कितना leverage हमको use करना चाहिए? Of course अब तो SEBI की guidelines आ गई कि maximum of 5x leverage will be allowed, right? और by September I believe कि ये भी खत्म हो जाएगी। So there will be no leverage in market, आपका जो पैसा है उसी से आप buy sell करते रहो, there will be no leverage in market। अभी 5x तक का leverage allowed है, उसके बाद there will be no leverage in market, right? So it will be a bit tough, लेकिन of course अगर आप option buying करते हो तो you don't have to worry as such for leverages and everything, राइट। सो दिस व्हाट लेवरेज इज, एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, बेसिक्स क्लियर हो गया आज हमारे, राइट। 1 घंटे का सेशन था, बेसिक क्लियर हो गया। श्रीराम, आई वोंट बी एबल टू अनम्यूट यू गाइस बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत सारे नॉइज डिस्टर्बेंस आएंगे, 33 प्लस लोग हैं इधर उधर से, राइट। सो आई वोंट बी एबल टू अनम्यूट यू गाइस। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट टाइप इन दिस पर्टिकुलर चैट बॉक्स, राइट। एंड आई विल कीप दिस मैसेजेस प्राइवेट बिकॉज यू नो आपकी स्क्रीन पे वो पॉप आउट होते रहता है बार बार। When you watch our screen, कुछ important topic चल रहा है, नीचे से कोई ना कोई टाइप करते रहेगा कुछ ना कुछ, so in this case पॉप अप होते रहेगा और आपका ध्यान जाते रहेगा बार बार उस पर्टिकुलर चीज पे, right? So this is it for today. I'll share the recordings as well for today's session because some of you were not able to join, and this is for today. I hope you don't have any doubt. If you have any doubt, या स्टॉप लॉस एंड टारगेट वगैरह ये सब तीसरे दिन से सीखेंगे। आज पहले 2 दिन लेट अस जस्ट स्टिक टू बेसिक्स क्लियर करते हैं बिकॉज देयर आर पीपल हु हैव नो आइडिया अबाउट मार्केट्स, राइट। सो दिस इज निफ्टी 50, यू कैन सी ये निफ्टी 50 का चार्ट है, राइट। हमको सिंपली क्या करना है, आगे जाके हम सीखेंगे इन चार्ट्स वगैरह को, हमको सिंपली क्या करना है, ये जो कैंडल स्टिक्स हैं, राइट, ये जो एक ग्रीन बार देख रहे हो, रेड बार देख रहे हो, ये कैंडल्स हैं, राइट। तो इनके बेसिस पे हमको ट्रेड्स लेने हैं, बाय सेल जो भी है इनके बेसिस पे हमको चीज़ें करनी है, राइट। हमको समझना है कि यू नो एक पर्टिकुलर मोमेंटम कैसे आता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आने वाले दिनों में समझेंगे, राइट। सो दिस इज निफ्टी 50, राइट। सो लेट अस से अगर मैं 1 डे टाइम फ्रेम में लेके जाऊँ आपको, राइट, ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें सीखेंगे हम लोग तुमको, राइट। तो लेट अस से जब मार्केट गिरा था, जब मार्केट में क्रैश आया था पिछले साल, राइट, तो ये जो क्रैश था तो निफ्टी 50 भी तब आराम से अच्छे से गिर रहा था, जब स्टॉक सारे गिर रहे थे तो निफ्टी 50 गिर रहा था। अब स्टॉक सारे यू नो रिकवर करके ऊपर आए हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, निफ्टी 50 भी रिकवर करके ऊपर आया है, सिंपल एज दैट, राइट। सो दिस आर द थिंग्स एंड विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। जैसे बैंक निफ्टी है, मेजर 2 इंडाइसेस है हमारे, मेजर 3 इंडाइसेस हैं। फर्स्ट वन इज निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स, ये जो 2 बड़े इंडाइसेस है। सेंसेक्स इज फ्रॉम बीएससी इंडेक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, Nifty 50 is NSE, National Stock Exchange, right? And Bank Nifty is banking sectors, right? तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा जो भी बैंकिंग स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे मोमेंटम्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, वॉट एवर दे आर डूइंग बेसिकली, राइट। गिर रहे हैं, कब रिकवर कर रहे हैं, कब एक बुलिश मोमेंटम आपको दिख रहा है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिलेगी, सिंपल एज दैट।